another few organelles of bacteria. So हम जो स्टडी कर रहे हैं वो बैक्टीरियल सेल की स्टडी कर रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल में बेसिकली क्या क्या जो है ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है और उनका फंक्शन इन बैक्टीरिया सेल क्या है, बिकॉज बैक्टीरियल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, so in eukaryotic cell there is many other organelles are present, like membrane body organelles are present, but in bacterial cell, to understand disease process, we should know about the structure of bacteria. Okay, so initially we have studied the cell wall of bacteria and the cytoplasmic membrane as well. Cell wall is a very important structure for bacteria because it helps in identification of bacteria through ground staining, and it is very common method to classify bacteria. Okay, so now we are going to discuss some other organelles which are present actually inside the cytoplasm. Until now we have studied the membrane or wall or outer boundary of cytoplasm and cell, but from now we are going to start cytoplasmic organelles or structure present inside the cell. जैसा कि first of all, cytoplasm. Yeah, what is cytoplasm? So cytoplasm has two distinctive areas when seen the electron microscope. Actually, cytoplasm वो area है जो कि actually in liquid form present है cell के अंदर. Okay, cell के अंदर in liquid form में area present है, and in cytoplasm, inside the cytoplasm, many organelles or many structure is present, and many biochemical reactions also occur inside the cytoplasm. Okay, so cytoplasm is also very important. So what is, for many, if we view it with electron microscope, usually there are two distinctive area inside the cytoplasm you can see. Okay, so just a minute. So on electron microscope, we can visualize two distinctive area of cytoplasm. Okay, so इन एरियाज में ऐसा क्या डिफरेंस नजर आता है साइटोप्लाज्म में? First one is an amorphous matrix that contain ribosomes, nutrient granules, metabolites and plasmids. ठीक है, मीन्स अगर हम साइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमें एक एरिया वो नज़र आता है जहाँ पर जो है हम देख सकते हैं किस चीज़ को, हमें जहाँ पर राइबोसोम्स, न्यूट्रिएंट, मेटाबोलाइट्स और प्लाज्मिड्स नज़र आते हैं, एक वो एरिया. और एक सेंट्रल एरिया
नजर आता है, वी कैन ऑब्जर्व सेंट्रल एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ओके, जो कि न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। सो टू एरियाज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो हम कहते हैं कि वो एरिया जो है वो न्यूक्लियस ने कवर कर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर हम दो एरियाज देख सकते हैं। सो here is a structure of bacteria, some important things in cytoplasm. Central area is a small nucleoid DNA. In central area, DNA or nucleoid is present, and in cytoplasm there are blue granules. Blue color granules are present, which are actually are ribosomes. Don't consider color. This color. ये कलर जो बनाया गया ये सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि आपको दिखाया जा सके। तो राइबोसोम जो है, सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट or also in cytoplasm and other things, many other organelles are present. So let's start further study. First of all, what are ribosomes, which are actually much important for how ribosomes are important. You can see green color granules, or slide. You can observe green color granules inside the bacterial cell. So why ribosomes are important? Actually, bacteria ribosomes are involved in the protein synthesis. As in human cells also, ribosomes are involved in the protein synthesis in bacteria. So in bacterial cell, ribosomes of bacterial cells are quite different from eukaryotic cells, but how it is different? Difference is in size is actually a major problem, because in eukaryotic cells, ribosomal size is 80s, but in eukaryotic, but in prokaryotic cell like in bacteria, ribosomes are smaller than eukaryotic cells. In bacterial ribosomes are of 70s, okay, 70 subunits, 70s, and there are two subunits: smaller ribosomes and larger ribosomes. A large size ribosome or large size subunit of ribosome is of 50s, and the small size subunit of 30s. Okay, so, bacterial ribosome have a size of 70s, but eukaryotic or human cell have ribosome of 80s. Okay, so major function of ribosomes are involved in the protein synthesis in bacteria. Okay, so another important thing is granules. Okay, so what are granules actually? In bacteria, there are special or some types of granules, special structures are present inside the cytoplasm. These special structures are actually granules. Okay, जिस तरह कि आपको ये राइबोसोम्स के अंदर हमें जो है राइबोसोम्स हमें यहाँ पर ग्रीन कलर में नजर आते हैं, इसी तरह we can easily identify the presence of granules inside the cytoplasm, like in blue color inside the uh, bacterial cell. Okay, so what are the function of granules? Granules are actually of different types. Yeah, these are actually sometimes known as storage granules as well, because these granules stores many nutrients for bacteria. Okay, uh, for example, one of the granules is volatin. Volatin is a store for high energy molecules, or high energy stored inside the volatin, and volatin are storage granules, okay, which are present in the cytoplasm of bacteria. And on the other hand, metachromatic granules, okay, metachromatic granules are also are common in Corynebacterium diphtheroides or diphtheria, Corynebacterium diphtheria.
we say diphtheroides as well. Okay, so metachromatic granules are actually these are also storage granules which are mostly present in Corynebacterium diphtheria. These bacteria called diphtheria. These bacteria cause disease known as diphtheria. So storage granules are also important. Okay, the storage granules helps in, these storage granules are stored for nutrients, energy, and many other things as well. Okay, so another important thing in bacteria is nucleoid, central nucleoid. Okay, central uh, central nucleoid, but without membranous structure around it. Okay, the nucleoid is the area in the cytoplasm in which DNA is located. Okay, actually a central area in the cytoplasm. मोस्टली इट्स एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियल स्पीशीज वी हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इन विब्रियो एंड स्पाइरोकीट सर्कुलर नहीं भी हो सकता, लीनियर न्यूक्लियोइड भी प्रेजेंट होगा, बट इन ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया न्यूक्लियोइड विल बी without membrane, or no membrane will cover the nucleoid. Okay, so that's why bacterial cell is prokaryotic, because no membrane bounded nucleoid is present. Okay, so इन विब्रियो कोलरा जो इसका जीनोम है वो सर्कुलर नहीं होता, सॉरी, ओके, सर्कुलर होगा। विब्रियो कोलरा में जो है वो सर्कुलर होगा, बट उसमें सिंगल सर्कुलर नहीं होगा, लाइक तो ये जो है एक्सेप्शंस हर जगह पर हैं। ठीक है, द बैक्टीरियल जीनोम एक्चुअली उसके साइज में वेरिएशन आती है। जो स्मॉलेस्ट जीनोम है उसमें 130 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, and the largest genome containing approximately 11,600 genes. Okay, so there are variations in the size of genome, बट ह्यूमन जीनोम जो है उसमें जो जीन्स होते हैं वो अराउंड 25,000 होते हैं। एक एवरेज और अप्रोक्सीमेट जो अंदाज़ा है वो ये लगाया गया है। ठीक है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, नो न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, and no mitotic spindles are present, and no histone proteins are present। ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन सेल्स और इन यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स no nuclear membrane present, no nucleolus is present, no mitotic spindles are present, and no histone proteins are present। There is little resemblance to यूकैरियोटिक सेल्स, वेरी लिटिल, क्योंकि देखिए जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए, सो ये एक रिसेम्बलेंस है, बट वेरी लिटिल रिसेम्बलेंस विद यूकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर आर एक्चुअली प्रोकैरियोटिक, एंड उसका जो न्यूक्लियड है वो इस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। Another important structure is plasmid. So this you can observe a diagram in which you can see a process of conjugation. So before conjugation, why conjugation is important here? Conjugation is important to understand plasmids. What are the plasmid? Plasmid is another important organelle of bacterial cell. Plasmid is another important thing about plasmid. Plasmid contain genes. Okay, plasmid contains genes, but in our body, genes are only present in the DNA, and in bacteria as well. जेनेटिक मटेरियल और ये न्यूक्लियोइड जो है इसमें जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर ऐसा भी है। ओके,
राइबोसोम्स का, जिसमें जीन्स भी प्रेजेंट है। डीएनए है लेकिन जीन डीएनए के अलावा एक ऐसा स्ट्रक्चर भी है जिसमें जीन्स आर प्रेजेंट। तो दीस सो जिसमें जीन्स प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्लाज्मिड्स। सो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, but plasmids are extra chromosomal double stranded circular DNA molecule. Okay, you can अगर in blue color प्लाज्मिड जो कि आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ठीक है, इट्स एक्चुअली ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। ये क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, ये क्रोमोसोम से सेपरेट है, बट क्या है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर मॉलिक्यूल है। और ये बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल ये रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ओके, ये इसकी रेप्लिकेशन मतलब एक प्लाज्मिड से दूसरा प्लाज्मिड बन सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ओके, सो प्लाज्मिड आर यूजुअली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, they can be integrated into bacterial chromosome. Sometimes क्या होता है कि ये इंटीग्रेट हो सकते हैं इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम और इन सेंट्रल बैक्टीरियल क्रोमोसोम, लेकिन ये सेपरेट भी रह सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव प्लाज्मिड आर यूजुअली सेम। ओके, देयर इज अ नो जो है कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। और इस तरह से बहुत सारी टाइप्स के प्लाज्मिड रहते हैं इन बैक्टीरियल सेल। सो यूजुअली दो तरह के प्लाज्मिड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स। व्हाट आर ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स? Transmissible plasmids can be transferred from cell to cell by conjugation. So this is a process of conjugation. Okay, दो सेल जो हैं वो पिल्लाई की मदद से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। ओके, और अपना प्लाज्मिड जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, so this is the process of conjugation. So transmissible plasmids are those plasmids which can be transferred from cell to cell by conjugation. आप स्टेप नंबर 3 में देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइडेड डायग्राम राइबोसोम जो है वो ट्रांसफर हो रहा है किसमें, राइट साइड वाले में। एंड इन फोर्थ स्टेप you can easily identify two plasmids, okay, in both bacteria. Okay, so यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि plasmids can be transferred from one cell to cell by conjugation. These are actually transmissible plasmids. uh, they are larger they are larger with molecular weight around 40 to 100 million, since they contain about a dozens genes responsible for synthesis of sex villi and for the enzymes. Okay, so it means they have a genes, and वो जो genes है express होते हैं तो वो different structure बनाने में भी involved है, like दे जो बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड के ऊपर जीन्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिल्लाई। ओके, पिल्लाई के अलावा कुछ इंजाइम्स बनाने में भी इन्वॉल्व है। वो इंजाइम्स हो सकता है बैक्टीरियल की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है और अदर बायोकेमिकल और आर इन्वॉल्व इन अदर बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स। ओके, सो अब कितने राइबोसोम्स होते हैं और ट्रांसमिसिबल राइबोसोम्स पर सेल कितने हो सकते हैं? तो यूजुअली जो इनका एवरेज एक अमाउंट है वो है 1 to 3, मींस 1 2 या फिर 3 जो हैं प्लाज्मिड हो सकते हैं, ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड हो सकते हैं हर बैक्टीरिया के अंदर। ओके, so another type is non-transmissible plasmids. What are non-transmissible plasmids? These are actually small inside, but इनके अंदर जो major difference है, they do not contain the transfer genes. जो ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड थे उनमें ट्रांसफर जीन थे, वो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के थ्रू मूव कर सकते थे फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, बट इन नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड आर एक्चुअली नॉन ट्रांसमिसिबल, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है, दे आर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन मैनी कॉपीज, और ये जो है
क्वांटिटी में ज़्यादा से स्मॉल होते हैं साइज में, बट इनकी जो कॉपीज और पर सेल है वो ज़्यादा होती हैं, वो काफ़ी होती हैं, यूजली 10 to 60 पर सेल भी होती हैं. ओके, सो now what are important functions of plasmids? Okay, so plasmids are पहली बात, plasmids are very important बिकॉज ये जो है बैक्टीरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, जीन्स क्योंकि खास किस्म के इसके ऊपर प्रेजेंट हैं. सो दीज ये बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं, कई दफ़ा सर्वाइवल में हेल्प करते हैं. कॉन्जुगेशन होगी तो इट मीन हेल्प किस में हो रही है, रिप्रोडक्शन में हेल्प हो रही है इनकी. आप कहें कि अगर एक बैक्टीरिया मॉडिफाइड है तो वो दूसरे बैक्टीरिया, तो वही राइबोसोम दूसरे बैक्टीरिया में जाकर उसको मॉडिफाई कर सकता है. ओके, सो लेट्स डिस्कस फंक्शंस ऑफ प्लाज्मिड्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विच इज मीडिएटेड बाय वैरायटी ऑफ एंजाइम्स सच एज बीटा लैक्टमेज इन स्टेफ ओरियस, ई कोलाई एंड क्लेब्सिएला. ठीक है. नाउ व्हाट आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है वो फाइट करने के काबिल हो जाता है. ओके, बैक्टीरिया बिकम कैपेबल टू फाइट अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स. इट मींस कि आप एंटीबायोटिक्स जो है, देयर आर मेनी क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स. जब एंटीबायोटिक आप पेशेंट को देंगे तो बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी होती है कि बैक्टीरिया इजीली उस एंटीबायोटिक से एस्केप कर जाता है और इन्फेक्शन जो है वो जो है वो ट्रीट नहीं होता. ओके, बैक्टीरिया की किलिंग नहीं होती बिकॉज बैक्टीरिया हैव अ स्पेशल रेजिस्टेंस जीन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ड्रग. ओके, अब ये जो जीन्स है रेजिस्टेंट जीन के बहुत सारी ड्रग्स के अगेंस्ट भी हो सकते हैं और किसी ड्रग के अगेंस्ट नहीं भी हो सकते. सो दीज जीन्स आर और रेजिस्टेंट जीन आर प्रेजेंट एक्चुअली इन द प्लाज्मिड्स ऑफ बैक्टीरिया. ओके, सो अब कैसे ये करते हैं? अब ये जीन जो है प्रोड्यूस करवाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इंजाइम्स. फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टमेज इंजाइम, अ enzyme name which actually release from the expression of genes on the plasmids. वो कौन सा इंजाइम है? उस इंजाइम का नाम है बीटा लैक्टमेज इंजाइम. और जो ये बीटा लैक्टमेज इंजाइम है ये जो है स्टेफ ओरियस, इकोलाई और क्लेब्सिएला से कॉमनली रिलीज होता है. तो मींस जीन्स थे प्लाज्मिड पर तो बीटा लैक्टमेज रिलीज हो रहा था और बीटा लैक्टमेज बीटा लैक्टम ड्रग्स के रिंग को तोड़ देता है जिससे बीटा लैक्टम ड्रग्स यूजलेस हो जाती हैं. तो अगर पेशेंट वो मेडिसिन लेता भी रहे तो इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता, डिजीज खत्म नहीं होती. ओके, देन exotoxin genes such as enterotoxins of E. coli, anthrax toxins of Bacillus anthracis, exfoliative toxins of Staph aureus, and tetanus toxins of Clostridium tetani. So another thing, इनके ऊपर टॉक्सिन्स के जीन्स भी होते हैं. ये on plasmids genes for toxins are also present. Like कौन कौन से जीन्स हो सकते हैं, कौन कौन से एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस हो सकते हैं? उनमें आ जाता है इंटेरोटॉक्सिन्स. इंटेरोटॉक्सिन इकोलाई में से आता है. ठीक है. उसके बाद एंथ्राक्स टॉक्सिन. एंथ्राक्स टॉक्सिन जो है वो बैसिलस एंथ्रासिस से आता है, बैक्टीरिया का नाम है. आपने घबराना नहीं, आगे चल के आपको ऐसा ऐसा याद हो जाएंगे. ओके, सो इसी तरह जो है प्लाज्मिड कंटेन जीन फॉर टॉक्सिन एंड दीज टॉक्सिन्स आर हेल्प्स इन दी डिजीज प्रोडक्शन इन ह्यूमन. ओके, एंड और प्लाज्मिड पर कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मिड पर पिल्लाई के लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, मींस प्लाज्मिड्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं कि वो अगर जो करते हैं कि अगर वो एक्सप्रेस करते हैं तो बैक्टीरिया की सरफेस पर पिल्लाए बनते हैं. पिल्लाए आर स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द बैक्टीरियल सेल. ओके, सब पिल्लाई या फिम्ब्रियाई जो है वो, अब पिल्लाई का काम क्या है? वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ एडहेरेंस करता है. नाउ ये जो आपके सामने डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं पिल्लस नजर आ रहा है. तो दी पिल्लाई, दो पिल्लाई आपस में बाइंड करते हैं तो इस तरह कॉन्जुगेशन होती है. तो पिल्लाई का फंक्शन ये है. और पिल्लाई की प्रोडक्शन वाले जीन्स कहाँ पर हैं, यानी कि पिल्लाई स्ट्रक्चर में शामिल कैसे हुआ, वो जीन्स कहाँ पर हैं? वो राइबोसोम्स के, वो सॉरी प्लाज्मिड्स के ऊपर है. ओके, सो फोर्थ वन इज
अच्छा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट हैवी मेटल्स, जो मेटल्स आइंस है ना, वो भी समटाइम्स यूज होते हैं स्टरलाइजेशन में, वो भी समटाइम यूज होते हैं डिसइंफेक्शन में। तो ये बैक्टीरिया के अंदर ऐसे जीन्स भी हैं, ये जो प्लाज्मिड्स हैं, प्लाज्मिड के अंदर ऐसे जीन्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो हैवी मेटल के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। ठीक है, मतलब इनकी किलिंग, इनकी स्टरलाइजेशन भी मुश्किल हो जाती है। कौन कौन सी हैवी मेटल के अगेंस्ट हो सकते हैं, मर्करी के अगेंस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स जो है सिल्वर के अगेंस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इनके ऊपर स्पेशल इंजाइम्स वाले जीन्स होते हैं जिनको कहते हैं रिडक्टेज इंजाइम। ठीक है, जो इनके ऊपर राइबोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं, सॉरी प्लाज्मिड्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं लाइक रिडक्टेज इंजाइम के जीन्स, ये इंजाइम जब प्रोड्यूस होते हैं उन जीन्स से, तो दैन ये जो है बैक्टीरिया की किलिंग को इनहिबिट कर देते हैं थ्रू हैवी मेटल्स और कॉमन एंटीसेप्टिक्स जो हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। Another function is resistance to ultraviolet light। ठीक है, अब इनके ऊपर जीन्स हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बचने के लिए हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की। Another thing is bacteriocin। Genes for bacteriocin are present on the surface of plasmids। What are bacteriocins? Which are toxic proteins produced by certain bacteria that are lethal for other bacteria। Okay, two common mechanism of action of bacteriocin are degradation of bacterial cell membrane by producing spores in bacterial cell। It means इनके ऊपर ऐसे जीन्स भी प्रेजेंट हैं जो अपने नेबर बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी पोर कर सकते हैं, उनकी भी किलिंग कर सकते हैं। ओके, सो जिस प्लाज्मिड के ऊपर ये जीन्स हैं जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोसिन जीन्स, दीज बैक्टीरियोसिन जो है इसका फंक्शन क्या है, बैक्टीरियोसिन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इन्वॉल्व इन दी किलिंग ऑफ नेबरिंग बैक्टीरिया। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन में पोर कर सकती है और इसके न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड को भी डैमेज कर सकती है, डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए भी कर सकती है। ठीक है, सो ये इकोलाई से भी प्रोड्यूस होती हैं, सूडोमोनास एरोजिनोसा से भी प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें थी आज के लिहाज से।